بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 4 اگست ہے، منگل کا دن ہے، اور ایران کی جانب سے جس طرح سے دشمن کو تکنیکل ناچ نچایا گیا پوری دنیا نے ویٹنس کیا ہے، اور وہ امریکہ جو کہ ایران کے اندر 4 سے 5 دنوں کے اندر فتح حاصل کرنے کی بات کر رہا تھا، 4 سے 5 دنوں میں مکمل طور پر وہاں پہ اس ملک کے اوپر، ایران کے اوپر اپنا کنٹرول، اپنا تسلط جمانے کی بات کر رہا تھا، آج ایک ٹائم گزرنے کے باوجود وہ گھٹنوں کے اوپر آنے پہ مجبور ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی بیسز مکمل طور پر اس کا صفایا، اور پھر وہ جو ان کا طاقت کا ایک چشمہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے طاقتور فورسز وہ امریکہ کی ہیں، طاقتور ملک امریکہ ہے، امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اس کے باوجود اب وہ تمام تر مت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران نے وہ کر دکھایا ہے جو کہ تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ کیونکہ تاریخ کے اندر جب سے ورلڈ وار 2 کو لے کر آپ دیکھیں کہ امریکہ کی جانب سے جو جاپان کے اوپر ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اس کے بعد سے لے کر امریکہ کی جو دھاک ہم نے دیکھی، پوری دنیا کے تمام تر ممالک ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے دکھائی دیتے تھے، لیکن ابھی جو ایران ہے اس نے پورے کا پورا منظرنامہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ ابھی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ایران کا جو امریکی جہاز کے حوالے سے، جو یوں کہہ لیں کہ خفیہ جو جہاز، جو تباہی پھیلانے والا، جو کہ سرویلنس کرنے والا، جو خفیہ راز جو ہے وہ اکٹھے کرنے والا اور کسی ریڈار میں نہ آنے والا، اس کے اوپر قبضہ کر لینا، اور پھر اسی طرح کے جو ان آرمڈ وہیکل جو ہے وہ پھر اس بیس کے اوپر برانا، یہ ایسی ایک زبردست قسم کی چال ہے جس نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ جنگ کے اندر اس نے مکمل طور پر بازی کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ کیسے؟ یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے ایران کو کمزور سمجھا جاتا تھا، معاشی زبوحالی کا شکار ہے، اور ایران جو ہے وہ اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک مت بنی ہوئی تھی، لیکن امریکی 2 جہاز جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا کیا ہے، اور پھر جو امریکہ اسی تمام تو اسٹریٹجی کے اوپر جو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیسے؟ یہ بڑی اہم سٹوری ہے، کیونکہ ایران جو ہے جس نے زبردست قسم کے حملوں اور زبردست قسم کی اسٹریٹجی کے ساتھ جو پورے کے پوری جنگ کا توازن اور طاقت کا توازن بدل کے رکھ دیا، اور حالانکہ دشمن جو ہے وہ سامنے سپر پاور ہے، سامراجی قوتیں ہیں، ان سب قوتوں کو اس نے گھٹنے کے بل لا کے کھڑا کر دیا۔ کیسے؟ یہ بھی بڑی اہم ترین سٹوری ہے۔ اور پھر ایران نے جو کیا وہ جو ایک ایٹمی ہتھیار بنا لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو یورینیم گریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس نے مذاکراتی ٹیبل کے اوپر بھی ایران کا پلڑا بھاری کر دیا ہے۔ ابھی ایران اور امریکہ کی مذاکرات کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، باز گشت ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ایران جو ہے 1 سٹیپ اہیڈ آتے ہوئے ایک زبردست قسم کی کامیابی سمیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کا اتنا پلڑا بھاری ہے کہ وہ اپنے معاملات، وہ اپنی باتیں منواتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیسے؟ یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ایک عرصے کے بعد دوبارہ سے میں نے کم بیک کیا، جس کی وجہ سے ریچ ویڈیوز کی بہت کم ہے، لوگوں تک ویڈیوز پہنچ نہیں پا رہی، تو آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کمنٹس میں جا کے اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ اوکے، اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ایران نے 100 سالہ جنگی فارمیٹ اور حکمت عملی تبدیل کر دی ہے۔ ابھی یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جنگ میں اس تبدیلی کو جو پیش کیا گیا، اب دنیا بھر میں اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، لیکن چند دن پہلے ایران کے ہاتھوں 3 F-35 ایئر کرافٹ گراؤنڈ جو ہے وہ گراؤنڈ پر ہی ناکارہ ہوئے تھے، اور 2 کو نقصان پہنچا تھا۔ میں بتا چکا کہ مستقبل کی جنگ میں فائٹر جہاز نہیں ہوں گے، اور جنگ میں ان جہازوں کا خاتمہ گراؤنڈ پر ہی ہوگا، کسی ڈرون یا پھر میزائل کی مدد سے، اور ان جنگی فائٹر جہازوں کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ان جہازوں کے رن ویز کی حفاظت بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور ان جہازوں کی قیمت اور پائلٹ ٹریننگ ہمیشہ ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن اب جہاز اور پائلٹس دونوں
सॉफ्ट टारगेट जो है वो बन चुके हैं। यही हाल बड़े बहरी जहाज़ों का होगा। आबदोज़ों का जंग में कोई किरदार नहीं होगा, क्योंकि आबदोज़ें बड़े जंगी जहाज़ों का शिकार करने के लिए रखी जाती थी। जब शिकार ही नहीं होगा तो शिकारी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, और आबदोज़ से मिसाइल फायर जो है करने की ज़रूरत ही नहीं, जब मिसाइल और ड्रोन रेंज आपको आबदोज़ से ज़्यादा रेंज देगी। अब सोचें, इस जंगी हिकमत अमली और वॉरफेयर को बदलने वाला कितना ज़हीन दिमाग होगा। जब दुनिया अपना पैसा फाइटर जहाज़ों, बहरी जंगी जहाज़ों, आबदोज़ों, बंदरगाहों और फिर एयर बेसिस पर फोंक रही थी, तो ईरान अपना पैसा एक नई जंगी वॉरफेयर में लगा रहा था। मानना पड़ेगा कि दुनिया की ज़हीन तरीन कौम ईरानी कौम है। अभी ईरान ने किस तरह से अमरीकी जो एक कह लें कि हिडन मिथ जो है उसको तोड़ा, और खुफिया जो इनके CIA ड्रोन है जो कह लें कि उसके ऊपर कब्जा किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जनरल अली बिलाली, सिपाही पासदारान इनकलाबी के जो फिजाइया के कमांडर हैं, उनके मुशीर हैं, उन्होंने बताया कि कई सालों से एक अमरीकी स्ट्रेटेजिक जासूसी ड्रोन RQ-170 सेंटिनल खुफिया तौर पर ईरान पर काम करता रहा। ये कोई फौजी तैयारा नहीं था, बल्कि CIA के ज़ेरे कंट्रोल एक गहरा जासूसी आला था, और इसने कंधार के एक अड्डे से उड़ान भरी और फिर ईरानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ। मिसाइल के बुनियादी ढांचे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन चैनल्स और फौजी तनसीबात का इसने डेटा इकट्ठा कर लिया। अब तैयारा जो है वो अमली तौर पर जो है वो हिडन था, नजर ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा। तो इसका रडार से पता नहीं चला, थर्मल इमेजर्स ने इसे नहीं उठाया, जो वेव्स हैं वो उनसे मुनाकिस नहीं किया गया, और इसके थर्मल दस्तखत को छुपाया गया। और अमेरिका को यकीन था कि ये नाकाबिल तस्खीर है, और ईरान ने फौरी तौर पर इस खतरे का पता नहीं लगाया। लेकिन जैसे ये हकीकत मालूम हुई, फिजाई दिफा और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर फोर्सेस की तरफ से एक मुनज़्ज़म शिकार शुरू हो गया। 2 साल कामयाबी के बगैर, और फिर एक ऐसी ज़बरदस्त कामयाबी जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। अभी जो मशकों के दौरान ईरान ने गोली मार नहीं की, बल्कि CIA के खुफिया ड्रोन्स को रोक कर उतारने पर मजबूर कर दिया। और ईरानी सरजमीन पर ये जो है वो यूं कह लें कि कंट्रोल एल्गोरिदम, मवासलात और खुफिया कारी के निज़ाम, सॉफ्टवेयर, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस मवाद, ये सारा कुछ उसके अंदर जाहिर सी बात है मौजूद था। ये एक तकनीकी पेशरफ थी, और यहाँ तक कि अमरीकी फ़ौज को भी इस तैयारे में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर हल तक रसाई हासिल नहीं थी। इसलिए सदर ओबामा ने ज़ाती तौर पर ड्रोन की वापसी की दरख्वास्त भी की थी, ये पुरानी जब इन्होंने ये सब किया था। बाद में जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने एतराफ़ किया कि ईरान ने अमरीकी फ़िज़ाई बर्तरी को चैलेंज किया, और इस तरह अमेरिका का एक अहम जो कह लें कि मिथ जो थी, उसकी मुकम्मल स्ट्रेटेजिक कमज़ोरी के बारे में ये ईरान ने मुकम्मल अपना शिकंजा टाइट किया, और वो जो एक मिथ थी वो बिखर गई। अब इस लम्हे से ईरान में तेज़ी से इजाफा हुआ। स्ट्राइक्स जो हैं वो अनआर्म्ड व्हीकल्स की तरक्की इस तरह से हुई कि दुनिया देखती है, कहती है जी ईरान के ड्रोन्स बेहतरीन ड्रोन्स हैं। ये बेसिकली वहाँ से टेक्नोलॉजी जो है उसकी मैनोवरिंग, उसको बाकायदा तौर पर दोबारा से जो है वो तैयार करना, ये ईरान की कामयाबी रही। इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम, एयर स्पेस कंट्रोल में खतरे को तकनीकी फ़ायदा में तब्दील करने का ये पूरे का पूरा सिनेरियो इन्होंने रखा। लेकिन अभी वो सूरह अनफाल के अंदर उसकी आयत नंबर 9 का तर्जुमा, जब तुमने अपने रब को मदद के लिए पुकारा तो उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों से करूंगा जो उनकी सफ में होंगे। अमेरिका ने खुफिया तौर पर हमला किया, और वही वहाँ पर जो है कह लें कि अपने हमलों का शिकार होते हुए वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी ईरान के हत्थे लग गई। तो ईरान ने बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे हासिल की, और ईरान ने ना सिर्फ अपने आसमानों का दिफा किया, बल्कि उसने दुश्मन की टेक्नोलॉजी पर कब्जा किया और इसे अपनी आज़ादी के हथियार में तब्दील कर दिया। ये तो एक पहलू था। अब एक मुआहिदा सुन लें, जो कि क्योंकि अच्छा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 जहाज़ ईरान ने अमरीकी जो वहाँ से अपना हरमुज से, क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, वहाँ से गुजरते हुए उन्होंने उनको टारगेट किया है, और वो भी निशाना बने हैं, जो कि वहाँ से अपना हरमुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो एक उभरता हुआ हरमुज मुआहिदा जो है वो ईरान को आबी गुजरगाह का कंट्रोल दे देगा, जबकि इसके बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम पर बातचीत शुरू दोबारा कर दी जाएगी। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खलीज की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ अपने साहिल के करीब ईरान के ज़रिए कंट्रोल चैनल इस्तेमाल करेंगे, जबकि रवाना होने वाले बहरी जहाज़ ओमान के करीब जो है वो मुंतकिल होंगे। अब जो ईरानी हुकाम का कहना है कि कोई टोल नहीं है, बल्कि माहौलियाती असरात
कार्गो सिक्योरिटी और अमले के लिए एक सर्विस फीस है, जिसमें मस्कत के यानी ओमान के साथ जो आमदनी यकसा तौर पर तकसीम होती है, और इस अकाउंट को एक अमरीकी एहलकार दुरुस्त नहीं कहता और इस बात पर इसरार करते हुए कि कोई ईरानी मंजूरी नहीं है और कोई टॉल नहीं है। यह ढांचा ईरान और ओमान को इफ्तिताही बातचीत के लिए 60 दिन का वक्त देता है, और इस विंडो के दौरान वाशिंगटन और तेहरान का मकसद ईरान के 11 टन अफजुदा यूरेनियम के जखीरे पर बातचीत दोबारा शुरू करना है, जिसमें बॉम्ब ग्रेड के करीब करीब आधा टन भी शामिल है। और अमेरिका का मुतालबा है कि ईरान ईंधन को पतला कर दिया जाए ताकि इसे आसानी से हथियार न बनाया जा सके, फिर इसे ठिकाने लगाना या बिजली पैदा करने के लिए अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क को भेज दिया जाए। अब आखिरी जो जौहरी घड़ी थी, जो न्यूक्लियर क्लॉक, वो पहले ही नाकाम हो गई थी, क्योंकि वेंस और ट्रंप ने जून के वस्त में एक मंसूबे पर दस्तखत किए थे, जिसमें 60 दिनों में एक माहदे का वादा किया गया था, और वो आखिरी तारीख 2 हफ्तों में खत्म हो जाती है, जिस पर कुछ भी नहीं हुआ था। हुकाम निजी तौर पर किसी भी जौहरी माहदे के होने पर शक करते हैं और तवक्को करते हैं कि ट्रंप सिर्फ जून 2025 के हमलों के मलबे के नीचे दबे हुए जखीरे का ऐलान कर सकता है। और ईरान ने मजीद कहा कि अपनाए उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक कि अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं कर देता, जबकि पेंटागन के हुकाम ने इंतजामात को तसल्ली बख्श जो है वो करार दिया और नोट किया कि ओमानी रास्ते में अब भी इतनी बारूदी सुरंगें मौजूद हैं कि बहरी जहाज़ों को गुजरने के लिए ईरानी ताउन की ज़रूरत रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ईरान ने अमेरिका की जानिब से जो बारूदी सुरंगें उखाड़ने की कोशिश की गई, दिन के अंदर चंद एक कह लें कि 500-600 के करीब जो है वो उखाड़े गई, और इस वक्त तकरीबन लाखों के करीब, हज़ारों लाखों के करीब बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका वो बारूदी सुरंगें ही निकालने की कोशिश में लगा रहता है और अपनी फोर्सेस लगाता है और वहाँ से उनको निकालने की कोशिश करता है, तो कम से कम उसको 1.5 साल लगेगा, रोजाना की बुनियादों के ऊपर, रोजाना दिन रात मेहनत करने के बाद। तो आप अंदाजा करें कि ये इस वक्त कैसी स्ट्रेटजी है, कैसा कमाल का प्लान है, जो कि इस वक्त अमेरिका के लिए मुश्किल का बायस बना हुआ है, और वो ईरान के बगैर यहाँ पे ईरान के साथ टेबल पर बैठ के फाइनलाइज मामला को करते हुए आगे नहीं बढ़ सकता है। ये कुछ अहम अपडेट्स ही मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।